Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in this video we are going to discuss about the dusting powders. So in the previous lecture we have discussed about the effervescent powders and we have studied about the bulk powder. Now we are going to study another type of powder and we see how to prepare it. So dusting powder is used for the external application onto your skin, and it is antiseptic in nature, so it is externally used. In the previous lecture we have discussed about the bulk powder, which can be used internally as well as externally. So what is the use of this powder? So uses of this powder is that it is antiseptic in nature, it is septic, it is anti-astringent, mean it is used to treat the skin allergies and skin infections, and it is providing a protective layer over it. Now we are going to see what is the nature of this powder. So the first thing you have to need to remember that it is homogeneous. Homogeneous means the size of these particles are very small in nature and they are uniformly mixed together. So size of particle will be very small, having uniformity in them. When you apply them on your skin, you will feel no kind of itching or granules in it. Now it is uniformly spread on your skin, and when you make it to fall on your skin, it will stick to your skin. So it means it has a quite kind of adhesive nature is also in them, and they must have easy flow. So they should easily flow out of कंटेनर. सो ईज़िली फ़्लो होता है इनका. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के कंटेनर्स में हम इसको डिस्पेंस करते हैं. सो इसका कंटेनर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कि टॉप पे परफोरेटेड होगा. परफोरेटेड, सो PER होता है परफोरेटेड, ठीक है. सो इसका टॉप परफोरेटेड होगा जहाँ से आपको ये पाउडर मिलेगा. अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मीन्स कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो इसके इंग्रेडिएंट्स में बाकी तो पाउडर्स यूज़ होते हैं, लेकिन साथ एक इनर्ट सब्सटेंस भी यूज़ होता है. सो पाउडर्स में कौन कौन से पाउडर्स हम यूज़ करते हैं. हम लोग स्टार्च यूज़ कर सकते हैं, बट हम स्टार्च को रेयरली यूज़ करते हैं. कैलोइन को यूज़ करते हैं हम लोग, और टैलिक को यूज़ करते हैं. इसके साथ जो इनर्ट सब्सटेंस हम लोग यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था, और वो हमारे पास होगा टैल्कम, ठीक है. अब ये स्टार्च हम मतलब बहुत कम यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज इट कैन काज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सो देयरफॉर बैक्टीरिया की वजह से हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते. और जो इनर्ट सब्सटेंस है टेल्कम, ये भी बैक्टीरियल और फंजल ग्रोथ कर सकता है. सो अब क्योंकि ये यहाँ पर फंगल ग्रोथ हो रही है, सो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्टेरलाइज कंडीशन देनी होगी. सो इसकी प्रिपरेशन के अगर हम लोग प्रोसेस को देखें ना, तो सबसे पहले आपने अलग स्टार्च को वेट करना है, कलीन को वेट करना है, टेल्कम को वेट करना है, और कितना कितना वेट करना है. लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो ये टेलिक जो है इसका आपने 50 ग्राम वेट करना है, ठीक है. अब मैं भी प्रिपरेशन के मेथड बता रही हूँ. स्टार्च जो है वो आप लोगों ने 25 ग्राम वेट करना है. इसके साथ साथ आप ये चीज़ें बे करेंगे. कलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जिंक ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप जिंक ऑक्साइड यूज़ करेंगे तो वो जिंक ऑक्साइड का पाउडर बन जाएगा. फिर आपने इन सब को वे करना है और इन सब को अलग अलग स्टेरलाइज करना है. अब सबसे पहला जो मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, वो है प्री स्टेरलाइजिंग. So what you do in the pre-sterilizing, that you will pre-sterilize all of these powders separately. And how you sterilize? So for sterilizing there are some conditions that you have to put the temperature on 60 degree, and you have to completely put your powder in 60 degree temperature for 2 hours. So after 2 hours your powder will be sterilized. Now after pre-sterilizing you will weigh them, and you will dry mix them, and after mixing you again sterilize your container and your powder, and then you will are available to dispense. Now two types of containers can be used for it. ये तो मैंने आपको बताया ना कि टॉप पे परफोरेटेड होगा. टॉप पे परफोरेटेड कंटेनर को हम लोग कहते हैं स्टिफ्टेड टॉप कंटेनर. सो एस एस स्टिफ्टेड की स्पेलिंग लिख रही हूँ, SIFTER, स्टिफ्टेड टॉप, और आगे कंटेनर आप लिख देंगे. एक तो ये कंटेनर होता है, और दूसरा इसी का ही कंटेनर होता है जो कि हमारे पास प्रेशर एरोसोल्स होते हैं.
सो प्रेशर एरोसोल्स को ज़्यादातर हम इसका एज अ कंटेनर यूज़ करते नहीं हैं बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टलियर। सो ज़्यादातर हम टॉप परफोरेटेड कंटेनर्स या स्टिफ टॉप कंटेनर्स को इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डस्टिंग पाउडर्स को डिस्पेंस कर सकें। अच्छा, अगर इस डस्टिंग पाउडर की आप एक एग्ज़ाम्पल लिखना चाहें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में आपने आपने इसकी एग्ज़ाम्पल में जिंक ऑक्साइड पाउडर लिख देना है। जिंक ऑक्साइड एक ऐसा पाउडर है जिसको हम यूज़ करते हैं और जिंक ऑक्साइड में बिल्कुल यही कंपोजिशन होती है, जस्ट आप कैलाइन की जगह जिंक ऑक्साइड ऐड करेंगे। अब जिंक ऑक्साइड ऐड करने का क्या फ़ायदा होता है? एक्चुअली जिंक ऑक्साइड हमारे पास एज अ स्किन प्रोडक्टिव और एंटीसेप्टिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से ये डस्टिंग पाउडर एंटीसेप्टिक हो जाता है। ठीक है, सो ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या होंगे? देखें, डिसएडवांटेजेस इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हम लोग एक किस्म का कह देते हैं। अगर आप इस पाउडर को फ़र्स्ट करें इनहेल कर लेते हैं तो इनहेल करने के बाद आपको लंग्स की या पल्मोनरी कोई डिज़ीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने उसके ब्रोकन स्किन यानी कोई कट आया आपकी स्किन के ऊपर और ब्रोकन स्किन के बहुत डीपली वो पाउडर चला गया है, तब भी आपको कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सो अगर आपके पाउडर के अंदर हमने कहा जैसे स्टार्च है या आपके पास कैलाइन है, सो वो क्योंकि माइक्रोबियल की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं तो हम उसको यूज़ नहीं करते। बट जब लार्ज स्केल में ये यूज़ किया जाता है तो हम स्टार्च यूज़ करने के साथ साथ उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि हमारा पाउडर प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, सो ये हम लोग डस्टिंग पाउडर्स के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम लोग जी चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पाउडर के ऊपर। अच्छा, कुछ और डस्टिंग पाउडर्स की एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और है सैलिसाइलिक एसिड डस्टिंग पाउडर। ठीक है, सो